Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Happy Thursday afternoon to all of you, and thank you so much for tuning into Radio Zindagi, America's biggest South Asian radio network from East Coast to West Coast on multiple frequencies, and our Radio Zindagi app for iOS and Android keeps you all connected throughout the world. And of course, our Facebook page is Radio Zindagi Tri-State. I am Sanjeev, coming live to you from Radio Zindagi studio in Edison, New Jersey on this Christmas Eve, December 24th, 2020. Wishing you all Merry Christmas and Happy Holidays ahead. आज गुरुवार है, and you know गुरुवार के दिवस पे इसी वक्त पे जो एक स्पेशल शो होता है, स्पेशल वास्तु शास्त्र के जो एक्सपर्ट है उनके साथ, वो है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु के डॉक्टर रेवा कुमार. और ये जो शो है डिवाइन वास्तु टॉक विथ डॉक्टर रेवा कुमार, you can listen to us live on 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, on 1310 a.m. That's up in Parsippany, Morris County area, and 96.7 FM in Edison, Middlesex County. That's Radio Zindagi for you 24/7. Besides, you can watch us live on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. And now we're getting ready to bring in Dr. Rewa Kumar. If you have any question, you can call in studio number, which is 732-662-4701, 732-662-4701. That's the studio number. While you're watching us live on a Facebook page, any question you have regarding Vastu, you can definitely post a question on a Facebook page, and Rewaji will definitely answer that. With that note, I like to welcome Dr. Rewa Kumar, an individual with over 30 years of experience and has been helping individuals throughout the world when it comes to Vastu, and she has helped thousands of individuals when it comes to Vastu to bring peace and harmony in their life along with the success, and she's been doing a phenomenal job. worldofdivinevastu.com is the website that you can visit and get all the information that you really need to know. But she takes a time out of her busy schedule every Thursday to join us live on Radio Zindagi at 3:30 p.m. every Thursday. Didi, Jai Mata Di, Namaskar, welcome to the show. जय माता दी संजीव, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. और बहुत अच्छा लग रहा है संजीव को व्हाइट एंड रेड में देख के. सेंटा बनकर आए हैं. गॉड ब्लेस हिम विद द बेस्ट, यही कहते हैं. वैसे तो सेंटा आप सबको विशेष ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन आपको रिटर्न गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए ना, एंड यू रियली डिजर्व दैट रिटर्न. तो यही प्रेयर करेंगे कि आपके जरिए हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू and your family too. और यही दुआ करते हैं कि 21 जा रहा है उसको हम बाय करें, और जो 20 जा रहा है उसको बाय करें, और 21 का वेलकम करें. बिल्कुल. और 21 का वेलकम करने के लिए we'll have a special show next week also, to talk about 21 को कैसे वेलकम किया जाए और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाए. But listeners will give you information about that special show. दीदी, white and red यहाँ पे, पीछे black and red, ओके, एंड देन यहाँ पे छोटे मोटे ग्रीन कलर भी है. तो क्रिसमस के सभी कलर्स यहाँ पे मिले हुए हैं, एंड आज क्रिसमस ईव है, तो यू हैव टू बी इन हॉलिडे स्पिरिट, यू हैव टू बी रियली एंजॉयिंग दिस मूड ऑफ दिस फेस्टिवल, दिस हॉलिडे, एंड इट्स इट फील्स ग्रेट. बिल्कुल संजीव, क्योंकि क्रिसमस का भी एक अपना ही, बचपन से लेके इतनी एज हो गई, इसका एक अपना ही मजा होता है. और जो ये क्रिसमस के समय हम एक फैमिली के साथ में एक समय बिताते हैं, और अगले दिन जब हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में चाहे बड़े हैं छोटे हैं, हर किसी के आज भी यही है कि यस, Santa is still there and he has given us gift. उसको खोलने का फिर भी सबको वही एक रहता है, एक्साइटमेंट रहती है. लेकिन ये जरूर है कि इस बार क्रिसमस को हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी
क्रिसमस तो क्रिसमस है और अपने घर में बिताने का जो समय है इसका भी एक अपना मजा है। तो जी यही उम्मीद बिल्कुल। रखती हूँ कि सभी आज के दिन को बहुत अच्छी तरह इस क्रिसमस ईव को एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ कल मॉर्निंग को ये देखिए, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि गिफ्ट्स होती हैं, जरूर होती हैं, लेकिन उसके साथ में जब 25th को आप उठे ना, तो आप ये सोच के जाइए कि जो आपके क्रिसमस ट्री पे आपने गिफ्ट रखनी है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वो तो है ही है, लेकिन उसी जगह पर आपके लिए भी जरूर क्रिसमस पे सेंटा ने आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपकी विशेष को पूरी करने की चीजें रखी हुई हैं। सिर्फ आपको फील करना है, और फील किससे करना है? खूब खूबसूरत स्माइल के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, yes that I am blessed with abundance, yes divine force is with me, I am the best one, spread your arms or just try to grab that tree and then feel how do you feel it. Oh, very well said. दीदी, मैं हमेशा मानता हूँ गिफ्ट जो होती है, गिफ्ट्स मेक्स यू हैप्पी, टेम्पररली, लेकिन गिफ्ट ऑफ लव, gift of togetherness, gift of respect, and the blessings from the parents and elderly, that stays with you forever and ever and ever, and that's what's most important thing, चाहे वो दिवाली की गिफ्ट हो या तो क्रिसमस की गिफ्ट हो। तो ये जो गिफ्ट ऑफ टुगेदरनेस है, गिफ्ट ऑफ लव है, दीदी मैं चाहता हूँ कि आज इसी विषय पे बात करते हैं और आपसे कुछ जानते हैं वास्तु के बारे में। दैट देखो, ये जो गिफ्ट ऑफ टुगेदरनेस होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, चाहे वो फैमिली में हो, और फैमिली में स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ कपल जो होता है इनके लिए हो। Lately we've been hearing a lot of disturbing stories about couples separating and not working out in their marriage, ये सब हम सुनते रहते हैं। तो आज के दिन दीदी हम ये आपसे जानना चाहेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ that how to prevent married life from problems। अगर प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उनके बीच अनबन होती रहती है, तो डिवाइन वास्तु से कैसे प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जाए, प्रॉब्लम्स को संपूर्ण तरीके से मिटा दिया जाए एंड हैप्पी लाइफ जी जाए इन बिटवीन द कपल्स। बिल्कुल सही कहा आपने संजीव, क्योंकि टुगेदरनेस हर चीज पे ही होनी बहुत जरूरी है। एक हाथ है, अगर हाथ को हम बंद करते हैं तो हमारे में एक पावर आती है, एक स्ट्रेंथ आती है। अगर हम एक फिंगर के साथ में लेके चलते हैं तो हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं, और वो पॉइंट करना ही बहुत गलत होता है। हर तरह से हमें टुगेदरनेस चाहिए। टुगेदरनेस हमारे को अपनी फैमिली से भी चाहिए, आपको अपने बच्चों से भी चाहिए, टुगेदरनेस अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट्स, आप कुलीग्स के साथ में, अपने बॉस के साथ में, अपने एम्प्लॉयज के साथ में, और सबसे ज्यादा टुगेदरनेस चाहिए आपको एक पर्सनल रिलेशन में, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। कहते हैं कि हम लाइफ का एक हिस्सा अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। बॉयज हैं वो भी पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, लड़कियां हैं वो भी गुजारती हैं, लेकिन जब उनकी मैरिज होती है तो वो एक सेकंड लाइफ होती है, जो आप जैसे कि 20-25 ईयर आप पेरेंट्स के साथ में रहे, लेकिन जब आपकी मैरिज होती है तो हस्बैंड के साथ में आप ये देख लीजिए कि आपको नेक्स्ट 75 years, 60 years, 80 years, whatever God has written in our destiny, उसके मुताबिक आपको गुजारना है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी समय संजीव कहते थे कि आफ्टर 65-70 जहां पे हस्बैंड वाइफ का एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, 65-70 पे उनके चेहरे भी एक दूसरे से मिल जाते हैं जी। वो आपको लगेगा कि दोनों एक ही तरह के चेहरे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके रंग में रंग जाते हैं, वो उनको भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर से क्या उनकी आदत थी या क्या उनकी नेचर थी। लेकिन एक एज में आके, अपने ओल्ड एज में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक तरह से बिल्कुल एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, एंड दैट इज द राइट टाइम। बिकॉज आवर यूथ, क्योंकि एक यूथ होता है वो आप अपना चलते घूमते एक लव में, जैसे कहते हैं लव इन एयर, उसकी तरह गुजार लेते हैं। आपके बच्चे होते हैं वो लाइफ अपना बच्चों में गुजार देते हैं, अपनी जॉब में गुजार देते हैं। बट आफ्टर 60 अगर एक समय आता है जहां पर दोनों को, पार्टनर्स को एक दूसरे की बहुत जरूरत है,
हो सकता है लिसनर्स व्यूअर्स इस समय कहें कि रेवा जी आप तो हस्बैंड वाइफ के लिए अभी से 60 की बात कर रहे हैं। 60 की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से कुछ ही सालों के बाद में एक दूसरे से फेड अप होके या एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये डिवोर्स तक जाते हैं, वो ये जरूर सोचें कि 60 के बाद में उनका क्या होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 60 के बाद में उन्हें एक पार्टनर की बहुत जरूरत है, एक सही पार्टनर की। और वो सही पार्टनर क्या है कि जब आपकी मैरिज होती है, चाहे आपने वो लव मैरिज करी है, चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे पेरेंट्स की पसंद है, चाहे आपकी पसंद है तो पसंद ही, बिना पसंद तो आप शादी करते नहीं हैं। और जब आपकी किस्मत में वो लिखा है तो उस रिलेशन को क्यों नहीं हम एक अच्छे तरीके के साथ निभाए। और अगर लड़ाई झगड़ा है, खट्टा मट्ठा है, तो वो तो चलना ही चलना है, उसके बिना आप इंजॉय भी नहीं करेंगे। जहां तक जिस रिलेशन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी मोटी नोक झोंक नहीं हो, तो सोचो वो रिलेशन ही नहीं है, फिर वो डेड रिलेशन है। वो एक कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके बैठे हुए कि हमने इनके साथ लाइफ को बितानी है, लेकिन बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। क्या कारण है, क्या रीजन है कि आप घर से बाहर हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं, आपके आके इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने को ही तैयार नहीं है। क्या रीजन है कि आप कोई ना कोई बातों को लेके इतना क्रिटिसाइज करेंगे, या उस घर के बीच में मैन पावर इतनी डोमिनेट हो जाती है कि फीमेल पावर को लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और ऑन अदर साइड फीमेल पावर इतनी डोमिनेट हो जाती है कि मैन पावर अपने आप को बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि ईगो प्रॉब्लम को लेकर डाउन हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि बोथ आर सेम। आज वक्त बहुत आगे चला गया है, उसमें क्या है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को लेके चलना है। इट्स अ नेचुरल, एक ये टीच है हमारे पेरेंट्स ने भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी, हम सबके जो भी हैं सबको यही एक किया जाता है कि ठीक है आपकी मैरिज होगी ना, दिस इज योर हाउस, आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। ये नहीं कि आपको किसी डोमेस्टिक वायलेंस को सफर करते हुए निभाना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट क्या होती है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्यों हैं, हमारे लाइफ में सेपरेशन क्यों है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या डिवोर्स तक की नौबत क्यों आती है, इसका क्या रीजन है? इसका ये बहुत बड़ा रीजन है, अगर आपके घर में कहीं वास्तु डिफेक्ट है। रियली इट वर्क्स। मैंने बहुत घरों के, बहुत कपल्स के लिए, बहुत जगह पे मैंने वास्तु के लिए इस पे मैंने वर्कआउट किया है, और मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया तो डिवोर्स के पेपर सिग्नेचर होते हुए भी रुक गए हैं, या डिवोर्स होने के बाद में भी वो दोनों फिर एक हो गए हैं। अरे, that's It incredible. really works. Yes, it works. अब रीजन क्या है आप जरूर देखिए। नेचर की बात है, वो सब कुछ बात है, वो एक अंडरस्टूड है कि हमें एक दूसरे को अडॉप्ट करना है, क्योंकि अच्छे के साथ तो हर कोई गुजारा करता है, किसी बुरे के साथ करे तब निभाते हैं। पर फिर भी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम है, तो इट्स बैड। लेकिन रीजन क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो तो सामने अगर मिरर हो, अगर सामने मिरर एंट्रेंस डोर के अंदर आते ही सामने मिरर होगा, या आपके बेडरूम में आपकी बॉडी मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट करती होगी व्हाइल स्लीपिंग, और बेडरूम के अंदर में कहीं वाटर से रिलेटेड अगर कोई पेंटिंग है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, और उसकी वजह से उनका रिलेशन खराब हो रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर कि हमारे को एंट्रेंस करते कभी मिरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन हो सकता है, अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप अपने रूम में जाएंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ में इतना ज्यादा आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, इतना टेम्परामेंट एक दूसरे का बढ़ जाएगा कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना ही नहीं पसंद करेंगे।
सिर्फ साउथ ईस्ट का बेडरूम ही नहीं, इवन कि साउथ ईस्ट अगर हमारा एलिवेटेड होता है, या साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर हमारा मिसिंग है, या साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमारा बाथरूम आ जाता है और साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पर्सनल रिलेशंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लिटिगेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे को छोड़ना भी शुरू हो जाता है कि आप ये बताएं कि हमने इकट्ठा रहना ही नहीं है। बहुत बार पाया जाता है कि जिससे मुझे कस्टमर्स ये क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम पहले घर में तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब ये नया घर लिया, लेते ही जी जिस दिन गृह प्रवेश था उसी दिन ही हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो गई। अब उसका कारण क्या था संजीव? उसका रीजन था क्योंकि वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर था। अब साउथ वेस्ट फेसिंग अगर घर होगा तो वो घर की एनर्जी को ड्रेन कर देता है, वो घर के पैसे को ड्रेन करता है, वो आपके पर्सनल रिलेशन को ड्रेन करता है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को माइनस करना है। जो कुछ है वो आपका साउथ वेस्ट एक तरह के कह रहा है कि उस एनर्जी को सक कर जाता है, उसको खत्म कर देता है। तो कहीं पे भी हमारे को साउथ वेस्ट फेसिंग अगर हमारा एंट्रेंस डोर है तो व्यूअर्स, लिसनर्स, आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए जरूर सोचिए। ये नहीं कहती कि आप उस घर को छोड़ दीजिए, लेकिन उसे रेक्टिफाई जरूर कीजिए। क्योंकि अगर साउथ वेस्ट हमारा मेन एंट्रेंस डोर है या साउथ वेस्ट में हमारा गार्डन है, हमारा बैकयार्ड डाउन है, तो वो आपकी हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव रिलेशंस को, आपकी बॉन्डिंग को, सबको खत्म कर देता है। नेक्स्ट आप ध्यान रखें, रेड एंड ब्लैक कलर। कहीं आपके बेडरूम में ज्यादा रेड या ब्लैक कलर डोमिनेट तो नहीं कर रहा? रेड या ब्लैक कलर भी होगा तो वो भी आपस के पर्सनल रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं किसी थर्ड की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड की वजह से कि कई बार आज के वक्त में हम कह देते हैं, लेडीज है, फीमेल्स है, कहते कि हमें अपने हस्बैंड के फैमिली से इश्यूज है, हस्बैंड कह देते हैं कि हमें वाइफ की फैमिली से इश्यूज है। मतलब कि थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस वो आती है अगर आपका साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में खासतौर पे रेड या ब्लैक कलर आपके बेडरूम में डोमिनेट करता है। आपको हमेशा आपके साउथ वेस्ट के साउथ डायरेक्शन के ऊपर में अपने बेडरूम में सिर्फ आप अपनी पिक्चर लगाइए हस्बैंड वाइफ की। इवन की मास्टर बेडरूम में कहीं पे रेकमेंड नहीं करते कि आप अपने बच्चों के साथ की पिक्चर लगाएं, क्योंकि वो एक आप दोनों का पर्सनल रिलेशन से, पर्सनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है जो आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। तो साउथ वेस्ट की, अगर साउथ की वॉल पे अंदर आपके बेडरूम पे आप एक खूबसूरत अपनी पिक्चर लगाइए और साथ ही वहां पर अपने बेडरूम में कभी भी भगवान की पिक्चर या राधा कृष्णा जी की पिक्चर या गणपति जी की पिक्चर नहीं लगाइए। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? गणपति जी की भी 2 मैरिज बताई जाती हैं, रिद्धि और सिद्धि, और राधा कृष्णा का एक प्रेम है। प्रेम का वो इंडिकेटर है कि उन जैसा शुद्ध प्रेम किसी का नहीं था, एक परिशुद्ध प्रेम था, लेकिन वो एक विवाहिक कपल नहीं था, मैरिड कपल नहीं था। आप राधा कृष्णा का कोई भी स्टेचू, कोई भी पिक्चर आप अपने पूजा रूम में लगा सकते हैं, आप अपने बेडरूम के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम के अंदर नहीं लगाइए। अगर, क्योंकि ऐसा है, दिस इज ए साइंस, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन। ऐसा नहीं है कि ये कोई हिंदू मानेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे इंडियंस है जो हिंदू हैं, अगर सोचते हो कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक मैं टिप आपको बहुत जरूर दूंगी, और वाकई ही आप करके देखिए। बहुत सिंपल टिप दे रही हूँ, इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं है। अगर आपके पास में शिव जी और पार्वती जी की शादी की पिक्चर, मतलब कि while they are putting garland on their neck, एक दूसरे के गले में अगर वो जयमाला डाल रहे हैं, अगर शिव पार्वती की अगर आपके पास में ऐसी पिक्चर हो और आप अपने घर के मंदिर में या अपने घर के फैमिली रूम में, फैमिली लिविंग रूम जहां आपका है, वहां पर ईस्ट वॉल पे लगाइए। आप देखे सही कि आपको कितना फायदा होता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में कितनी हार्मनी है।
ये रिलेशन को हम बहुत ही तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि आपको जहां आपने साउथ वेस्ट को बंद किया, जहां साउथ वेस्ट आपने एलिवेटेड किया, तो आपका रिलेशन घर में ग्रो करेगा ही करेगा। और नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सुबह का सूरज ही वहां से चलता है। दैट इज द बिगनिंग, इट्स नॉट द एंड। और शिव जो है वो आपके बिगनिंग है, आदि से आज से अनंत तक है। तो अगर आप अपने इस रिलेशन को सालों साल कई जन्मों तक गुजारना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि 7 जन्म का रिश्ता होता है एक शादी का, लेकिन जो एक प्यार का रिश्ता होता है वो 100 जन्मों का होता है। तो आप 100 जन्मों के रिश्ते के बारे सोचिए, 7 जन्म के रिश्ते के बारे में। जब आप 100 जन्म के रिश्ते के लिए अपने प्यार में अपनी मधुरता लाएंगे, अपने प्यार में एक मिठास लाएंगे, एक अपने आप में ट्रस्ट लेकर आएंगे, तो नेचुरली है 7 जन्म नहीं 100 जन्म का वायदा करके चलिए। और आज के वक्त में भी हो सकता है, ये नहीं कि पहले जमाने में होता था। आज भी दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, और वो रिस्पेक्ट के लिए मेल पावर, फीमेल पावर, दोनों पावर उस घर में होनी चाहिए। वहां पर आपको क्या करना है, वॉल और सीलिंग का कलर डिस्टिंग्विश करना है। वॉल और सीलिंग का कलर अगर सेम होगा तो आप दोनों एक दूसरे पे भारी रहेंगे। जहां पर वॉल का कलर, सीलिंग का कलर डिस्टिंग्विश होगा, तो आप दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की पहचान को मानेंगे, और कहीं पे ईगो इश्यूज नहीं रहेंगे। इंटरेस्टिंग दीदी, मैं तो बस सोच रहा था कि आपकी बातें सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं, सुनता ही जाऊं। और मेरे साथ हमारे रेडियो जिंदगी के लिसनर्स और व्यूअर्स जो भी हैं, ये सब यही सोच रहेंगे कि कितनी अच्छी तरह से आपने समझाया, एंड हाउ दिस वास्तु प्रिंसिपल्स थ्रू डिवाइन वास्तु, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है, जहाँ पे आपका नॉलेज है, और जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी है इतने इतने वर्षों का। और जैसे आपने कहा कि कई कपल्स को आपने डिवोर्स होते हुए बचाया है, या तो डिवोर्स होने के बाद उनको एक टुगेदर फिर से लाया गया है बिकॉज ऑफ दिस वास्तु प्रिंसिपल्स। एंड मैं लिसनर्स को यही समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपने घर में एंटर होते ही मिरर रखा हुआ हो, या तो आपके बेडरूम में वाटर रिलेटेड पिक्चर रखी हुई हो, या तो साउथ वेस्ट फेसिंग होम हो, all these things can be rectified, all these things can be corrected through vastu principles, जिसमें रेवा जी की एक्सपर्टीज है, उनको नॉलेज है, and by calling her, by getting an advice and suggestion from her, will definitely help cure problems between your partners and in your married life. And she can be reached at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. नया वर्ष अभी शुरू होने जा रहा है, 2021 is just around the corner, knocking on the door, and in about 1 week or so we're going to be welcoming that new year. So new year में एक resolution बना लो, हस्बैंड वाइफ आप दोनों में से जो भी जिसकी भी खामियां हो उसको थोड़ी बहुत दूर करो, एडजस्ट करना सीखो, and try not to have any problems in between your partners in your married life, and follow this vastu principles, and through Revaji it can definitely be cured. आप कहीं पे भी हो, न्यूयॉर्क में हो, न्यू जर्सी में हो, कैलिफोर्निया में हो, यूएस से बाहर हो, you can still give her a call. You can contact her, and through virtual session she can definitely help you and suggest you to give her a call, 510-868-3338. And do visit her website, which is 510-868 do visit her website, which is worldofdivinevastu.com. That's the website, worldofdivinevastu.com. And a phone number is 510-868-3338. दीदी, ये बात जो आपने समझाई वो बहुत ही अच्छी थी, and I'm sure this will make difference in a lot of couples life. Now अभी जो थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, देखो कपल्स में प्रॉब्लम होती है, चीटिंग की अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, डाउट हो, शक हो, ये तो एक है। दूसरी बात जो आती है दीदी, जो मैंने नोटिस करी है, विच इज कंपैटिटिवनेस, यानी कि इफ वाइफ इज मेकिंग मोर मनी देन अ हस्बैंड, देन उसको भी लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। बच्चों को भी लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं कि हस्बैंड इज नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ किड्स बिकॉज फॉर एग्जांपल हस्बैंड इज बिजी और समथिंग, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम, उसको भी लेके प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार मनी जो होता है, पैसा भी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप हमें ऐसी कोई टिप दो कि हाउ टू क्रिएट मनी मैग्नेटिक पावर इन योरसेल्फ। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन आया हमारे लिसनर से, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले टिप जान लेते हैं आपसे।
जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए ऑफ कोर्स बिल्कुल आपने सही कहा है कि कई बार मनी की वजह से भी आपस में पर्सनल रिलेशन में इश्यूज आ जाते हैं। इस चीज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 1 बाय 1 कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, 1 + 1 2 करके मत चलिए, 1 and 1 is 11। अगर दोनों में से एक अर्न कर रहा है ज्यादा या एक कम कर रहा है, तो ये भी तो देखिए कि वो दोनों एक ही जगह पर आ रहा है। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि उसका ज्यादा है या मेरा ज्यादा है या मेरा कम है उसका कम है? नो, यू बोथ आर डूइंग टुगेदर, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट के बिना आप नहीं चल सकते। चाहे आपको अपने घर के बीच में चाहिए तो दोनों को हेल्प करना होगा, बिजनेस है तब भी दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना होगा। ये आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के ही चलना है कि हम 1 and 1 is 11, नॉट 1 and 1 is 2। और सेकेंडरी एक मैं आपको टिप जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी को आज के लाइफ में एक लग्जरी चाहिए ही चाहिए। वो समय चला गया है नेसेसिटीज का। आज वो नेसेसिटीज जो है वो लग्जरी में भी आती हैं, और जो लग्जरी है वो हमारी नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि टाइम बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, दैट इज रिलेटेड विथ योर शुक्र, जो वीनस हमको बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए कि वीनस आपके हाथ में, दिस इज जो थंब के नीचे आता है, ये आपका वीनस है। कभी भी व्यूअर्स लिसनर्स अगर आप देखें कि ये जगह आपकी उभर कर आ रही है, इसका मतलब कि आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आज मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये भी मैंने अपनी जिंदगी में भी ली हुई है और बहुत फायदेमंद है। आपको 22 डेज करना है। मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, इट हैज टू बी ऑन लेफ्ट हैंड। आप किसी समय कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड के नीचे, थंब के नीचे जो आपको शुक्र आता है, ये है जगह। आपको डेली मॉर्निंग में ब्लू पेन के साथ में लिखना है 520741 और उसको ऊपर सर्कल कर देना है। मीन्स तो कि आप अपने वीनस को इनहैंस कर रहे हैं। अच्छा, ओके। आप अपने वीनस को इनहैंस कर रहे हैं, शुक्र को इनहैंस कर रहे हैं। शुक्र क्या है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको लग्जरी देता है, आपको सुख देता है, आपको सौभाग्य देता है। सो यू हैव टू इनहैंस योर शुक्र, यू हैव टू इनहैंस योर वीनस। उसको इनहैंस करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है बिल्कुल थंब के नीचे में 520741 और उसको आप एक ब्लू पेन से ही सर्कल कर दीजिए। मिट जाएगा, फिर उसको मॉर्निंग लिखिए। अगर आप सोचते हैं कि हम अपने हाथों पे नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करें, आपने देखा है माइकल जैक्सन का, ये माइकल जैक्सन यूज्ड टू राइट एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू वियर ग्लव्स। अच्छा, एंड इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ही ऑलवेज यूज्ड टू राइट द स्विच वर्ड्स बट ही यूज्ड टू वियर ग्लव्स। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि इट इज हार्ड फॉर यू, तो आप अपने लेफ्ट साइड में कहीं पे भी अपने आर्म पे लिख दीजिए, आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं, अपनी थाई पे लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 22 डेज कीजिए। जब आपके ये स्विच वर्ड्स आप बोलेंगे तो यू हैव टू बी इन अ प्रेजेंट कि यस मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ, हम हस्बैंड वाइफ वी आर एंजॉयिंग एवरी लग्जरी, एक दूसरे के साथ में हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 22 डेज कीजिए और 23rd 2021 में मुझे जरूर बताइए कि आपका ये शुक्र कैसा रहा। मैं जनवरी 16 को आपको जरूर बताऊंगा। आज से ही शुरू करता हूँ, जनवरी 16 को मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसा रहा। वेरी इफेक्टिव टिप, आई लाइक इट। वेरी अनयूजुअल एंड वेरी इफेक्टिव टिप only comes from Dr. Reva Kumar. This is very unusual. Listeners, do try that. Didi, we have 30 seconds. एक जल्दी से question है, how can Vastu help happiness of a family with kids? ये हमने पहले भी बात हम कर चुके हैं, but ये जानना चाहते हैं कि फैमिली जो होती है बच्चों के साथ, तो वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है क्विकली, या तो वी कैन हैव अ शो नेक्स्ट वीक और वीक आफ्टर। बिल्कुल, मैं जल्दी से मैं बताना जरूर चाहूंगी कि किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। कई बार हमारे बच्चों की वजह से भी हमारे पर्सनल रिलेशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिटेल्स में मैं जरूर नेक्स्ट वीक में बात करूंगी। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी सुनील जी से भी कि मुझे नेक्स्ट वीक का समय थोड़ा ज्यादा दिया जाए, जिसमें मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगी और 31 दिसंबर क्या करना है और जनवरी 1 21 को क्या करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि जहां पर आप देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वहां पे जरूर
आप खास तौर पे अपने घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया को चेक करने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर का लाइट ऑन कीजिए। और टिप क्या देना चाहती हूँ, जहां बच्चे अपने फादर की बात नहीं मानते या फादर मदर के साथ में एक दूसरे के कोई इश्यूज रहते हैं, बच्चों की वजह से आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, तो बहुत सिंपल रेमेडी है। पहले कि आपको क्या करना है, जब भी आपके बच्चे सॉक्स उतारते हैं उनको हमेशा सीधा करके रखें, उल्टा करके कभी नहीं रखें। लेकिन जहां आपको बच्चे के साथ में बहुत इश्यू है तो आप अपने बच्चे की सॉक्स लीजिए, उसी सॉक्स के बीच में अगर फादर के साथ में इश्यू है तो फादर की सॉक्स दोनों एक दूसरे के बीच में मिक्स कर दें, मिक्स करें कि एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स डाल दें। तो फादर की सॉक्स में आप बेटे की सॉक्स डाल सकते हैं या मदर की सॉक्स में बेटे की सॉक्स डाल सकते हैं, पर वो यूज होनी चाहिए जी। उस सॉक्स को उठाकर आप अपने घर के साउथ वेस्ट में छिपा के रख दीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन बहुत डिटेल्स में बच्चों के इस रिलेशन से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है और फ्यूचर घर में में जरूर बात कैसे करेंगे हैप्पीनेस लाएं, तो हम जरूर बात जी, करेंगे। फ्यूचर में जरूर बात करेंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी टिप्स, बहुत अच्छे सजेशंस दिए। मेरा एक प्रश्न एंड में है, जो भी आपने बताया कि कपल्स के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे वास्तु के जरिए अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दीदी कि दिन में जो 8, 10, 12 घंटे होते हैं, अगर एवरी आवर आप अपनी वाइफ को बोलो कि आई लव यू, यू आर द बेस्ट, आई कैन लिव विदाउट यू, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है। लेकिन कहने से ज्यादा, कहते हैं ना कि जी। वर्ड्स, योर वर्क स्पीक्स। यस, एक्शन आपको वो स्पीक्स करके मोर भी देन देना वर्ड्स। है। जी Yes. बिल्कुल। सिर्फ वर्ड ओके, से नहीं, आप इधर से आई लव यू बोले और पीछे से उसे चीट कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। नहीं वो तो नहीं आपको चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे का ट्रस्ट को बना के रखिए, ट्रस्ट बिल्कुल। को बना के रखिए। और ये रिलेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है रिलेशन। इस मीठी नोक झोंक में याद रखिए कि आपका सारा बुढ़ापा संवर जाएगा। आप डोंट थिंक अबाउट योर यूथ, फॉरगेट योर यूथ, थिंक अबाउट योर ओल्ड एज व्हेन यू रियली नीड पार्टनर्स। बिल्कुल, बहुत सही दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग यू मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज, एंड we'll connect back with you next week with an extended version of Divine Vastu Talk Show with the tips of how to welcome New Year और वास्तु के जरिए क्या क्या करना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए हम सब तैयार है नेक्स्ट वीक आपसे बात करने के लिए। तब तक आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा। Thank you, Sanjeev. Thank you, viewers. Thank you, listener. Once again, Merry Christmas to all of you. Happy जी, Christmas. thank you so very much. You do. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.